Hello everyone, welcome back to AcetheCLAT. This is Ritik. So in this video we will be doing the analysis of CLAT 2021. Actually I have already made three videos prior to this. Alright, so you can watch them. I will link the playlist here. Let's get started. We are now in the legal reasoning section. If you haven't already subscribed to AcetheCLAT, please consider doing so. I've made a lot of videos related to CLAT and would continue to do so. So as previously stated, in this video I will look into legal reasoning. So here are the stats. Alright, ये legal reasoning यहाँ पे लिखा है. Source of the text, ये passages हैं, ठीक है. There were 8 passages. Let me change the ink. Okay, so there were 8 passages with 40 questions each, 5 questions each, which equals 40 questions. And to be very frank, it was very easy to do it within 40 minutes. Anyone who was comfortable with the legal language would have completed it in under 40 minutes. If you look at the topics, they were interesting this time. Almost all of them were interpretations of some of the other provisions of the Indian Contract Act or some judicial principle, right? Or the Hindu Marriage Act or the IPC, है ना? सो टॉपिक्स जो थे यार इस बार काफ़ी लीगल बेस्ड थे. लास्ट ईयर दिस वाज नॉट द केस. आई एम नॉट सेइंग कि सारे टॉपिक्स लीगल बेस्ड नहीं थे. कुछ टॉपिक्स ज़रूर थे, जैसे स्टायरीन गैस वाला था जिसमें प्रिंसिपल एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल्स पे कुछ क्वेश्चंस थे, है ना. अदर दैन दैट देयर वाज इनसाइडर ट्रेडिंग लास्ट ईयर एज वेल. सो इनसाइडर ट्रेडिंग के प्रोविजंस के बारे में बात की गई थी कि जो कंपनी के अंदर के लोग होते हैं, if they get some insider information and they make some investment decisions regarding the shares of the company, तो broadly उसे insider trading कहते हैं. So this was another topic, and other than that as well, it wasn't कि ज़्यादा topics legal based नहीं थे. Of course they were based on law only, but जो proper provisions हैं, जैसे voluntary non-fit injury जैसे हुआ कि if you consent to some harm voluntarily, you would not get any rights or compensation for that in a layman's language, right? Mutual consent जो हुआ, ये proper एक section quote किया गया था question paper में, I guess. Section 4 of Indian Contract Act was quoted, है ना. Section 28 भी quote किया गया था. And then उस पे author ने कुछ interpretation लिखा था और उसी interpretation पे questions थे. So apparently it seems कि question paper would have been difficult, but this wasn't the case at all, है ना. If you look at the structure of the paper, so there were 40 questions, 66 से 105 एक typical CLAT पेपर पे स्टार्ट होता है, खास करके तब जब से पैटर्न चेंज हो गया 2020 में, है ना. So case based, if you look at the first passages, 5 questions, 3 case based, 2 specific detail. Okay, seems fine. If you look at the next passage, 3 specific detail based, 1 case based and 1 application based. फिर अगले में almost सारे case based, फिर almost सारा case based, फिर almost सारा specific detail based, right? एक inference पे भी है. Well, consider from the perspective of CLAT, consider specific detail as an inference based question. I'm sorry for the handwriting. If you see another majority of the questions, 3 out of 5 specific detail based, and again specific detail based, है ना. 100 तक यहाँ पे again specific detail based, फिर यहाँ पे भी specific detail is the majority. So if I talk about numbers again, case based की अगर बात करें तो there were 19 questions. There were 19 questions on specific detail based as well, and 2 on application based. So this structure is very very puzzling, right? स्पेसिफिक डिटेल पे 45% था, केस बेस्ड पे सिर्फ 45% था, है ना. व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज जनरली केस बेस्ड पे अबव 30 क्वेश्चंस होते हैं. वी हैड CLAT 2020 का पेपर, राइट, एंड प्लस 3 सैम्पल पेपर्स एज वेल. सो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस पेपर्स में 30 क्वेश्चंस अराउंड या उससे ज़्यादा ही केस बेस्ड थे. कुछ specific detail based थे 5 to 8 or let's say 10, 5, 7, 10, 5 to 10 questions, and application based generally नहीं था, अगर था भी तो उससे भी कम था. So this was the stats. What should be your learnings? Before that, let's look at the question paper.
सी आई वॉज टॉकिंग राइट कि बहुत सारे क्वेश्चन केस बेस्ड स्पेसिफिक डिटेल बेस्ड थे. पहले पैसेज देख लेते हैं. वॉलंटरी नॉन इन्फेक्ट इंजूरिया पे है कि a person cannot claim of harm to the chances of which he has exposed himself with his free consent and free will. The maxim this is founded on good sense and justice. A person this is. So ये पूरा जो है डेफिनेशन है फर्स्ट पैराग्राफ में, अपेरेंटली यही लग रहा है. एंड देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस. तो 3 लिमिटेशंस की बात की गई है. सी सो यहाँ पे कोई इंटरप्रिटेशन ही नहीं हुआ. इन अ सेंस दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ बेयर एक्ट राइट. टॉट्स में कोई एक्ट्स नहीं होते नॉर्मली, बट बेयर प्रिंसिपल बोल लो ना, सीधा सीधे प्रिंसिपल लिया हुआ है. एग्जैक्टली सिमिलर टू ओल्ड पैटर्न इन फैक्ट राइट. नॉर्मली क्लैट 2020 में, लास्ट ईयर क्लैट 2020 में तो शायद एक भी पैसेज नहीं था जो सिर्फ प्रिंसिपल लिया हुआ था, उसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं था. सो वी विल हैव टू करेक्ट दिस. इन फैक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है, सिंपली वॉलंटरी नॉन इन्फेक्ट इंजूरिया. एंड उस पर क्वेश्चन देख लो. मिस्टर ए इज़ द कार ओनर. ठीक है, क्वेश्चन पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसेंट अबाउट वॉलंटरी इज इन वॉलंटरी नॉन इन्फेक्ट इंजूरिया. दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग बिकॉज बहुत ईजिली ऑप्शन ए मार्क कर सकते हो. आपको सिंपली एक बार जाके पैसेज पढ़ना था एंड ईजिली हो जाता. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट. ये भी पैसेज में दिया हुआ है. इट्स नॉट कि वैक्यूम में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है. सारे क्वेश्चन जो थे पैसेज पे ही बेस्ड थे, एप्लीकेशन बेस्ड. ऐसे आप केस बेस्ड को एप्लीकेशन बेस्ड ही बोल सकते हो. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर. एप्लीकेशन बेस्ड कौन सा था? 75. ओके. इन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स विल अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अ पार्टी. ओके, सो मैंने अपेरेंटली डिस्टिंग्विश इस बेसिस पे किया है कि यहाँ पे केस दिया हुआ है और यहाँ पे सीधा एप्लीकेशन है ना. यहाँ तो आपको केस देख के अपना डिसीजन लेना है, अप्लाई करना है प्रिंसिपल को. यहाँ पे सीधा अप्लाई करना है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. सो आई एब्सोल्युटली डू नॉट अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन को है ना, इट कैन ईजिली बी यूज्ड एज एन आरसी क्वेश्चन. इट हैज़ प्रीवियसली बीन यूज्ड एज अ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन एज वेल. और ये लीगल क्वेश्चन, बस सिर्फ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये ऑप्शंस नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. आपको ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी दिखता होगा, लीगल रीजनिंग में भी दिखता होगा. अगेन क्लियर कट एविडेंस कि ये तीनों सेक्शंस दे आर लिंक्ड. और इन्फ्रेंस द सिलेबस इज नॉट दैट वाइड. ठीक है. ओके, I hope you are getting me. So if anybody who claims that the syllabus is huge, है ना, तो वो सच बात नहीं है. ओके, मिस्टर ए सेल्स. सो ठीक है, तो फिर मैं क्वेश्चंस ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता यहाँ पे. लेट्स गो टू लर्निंग्स. वन मोर थिंग, इफ़ यू लुक एट द लेंथ ऑफ द पैसेजेस ना, दे आर नॉट ह्यूज एट ऑल, है ना, नॉट ह्यूज एट ऑल. सी, यहाँ सेक्शन 4 शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म. सो अगेन दिस वॉज टेकन फ्रॉम बेयर एक्ट. इट इज़ अ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ. एंड देखो, ये तो तुरंत ही ख़त्म हो गया यार, बहुत जल्दी. दिस पैसेज ऑन रेस जुडिकाटा, अगेन वेरी शॉर्ट पैसेज. कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इज़ ऑल्सो वेरी शॉर्ट. सो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. वैसे 10 भी हो तो 200 वर्ड के ही अराउंड है. 200-225 वर्ड के अराउंड सारे पैसेजेस हैं. नॉट अ बिग डील, नॉट डिफ़िकल्ट टू रीड. ठीक है. इफ़ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस पैसेज 86, 87, 88, 89, द पैसेज ऑन रेस जुडिकाटा. आई एम श्योर कि बहुत लोग फैमिलियर नहीं होंगे रेस जुडिकाटा से, बट यहाँ पे पूरा एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले बट यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है. एंड ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल राइट. कि रेस जुडिकाटा किस पे एप्लीकेबल है. रेस जुडिकाटा इज़ एप्लीकेबल टू रिट्स इफ़. सो क्लियर कट आंसर पैसेज में दिया होगा, है ना, दिया हुआ था. उसके बाद ही ये पूछा गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. अगेन, है ना, अगेन कंप्लीट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन ही पूछ डाला था इन्होंने इस बार तो. सी, बिफोर यू स्टार्ट टेकिंग दिस लीगल रीजनिंग सेक्शन कैजुअली, आई मस्ट वार्न यू कि इतने सिंपल क्वेश्चन होने के बाद भी बहुत लोगों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था लीगल रीजनिंग में. सी द क्लियर कट लर्निंग इज कि you have to be familiar with legal concepts and all.
and that is why I have started developing that sheet, right? The link is in the description, you can get access to it, and that access would be free of cost. Okay, let's look at learnings and summarize the lesson. The nature of the questions was different from what was asked in CLAT 2020. As can be seen, the number of specific detailed questions was 18. 19. Point 2 implies that one could handle this section well within 40 minutes. Yes, this is the implication of point number 2. Kyunki 50% of the questions were, based on the passage, directly based on the passage, or were direct questions. 40 minutes के अंदर करना was not a big challenge. Anyone who was familiar with legal language would not have found this section difficult. I have already said this. Solving PYQs of old pattern would have helped a lot क्योंकि कुछ questions, in fact कुछ passage पूरा का पूरा सिर्फ principle दिया था, no interpretation at all, and पहले यही pattern था, right? With one or two exceptions, all the questions were independent from preceding questions. So CLAT 2020 में क्या हुआ था कि ये जैसे आप पैसेज देख रहे हो, राइट? क्वेश्चन देख रहे हो 101. A man promises B a woman that he will marry her if she has sexual intercourse with him. B agrees, but after having sexual intercourse, A flees and never contacts B again. In the given situation, which statement is true? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जैसे अगर पहला क्वेश्चन हुआ तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? इंडिपेंडेंट है पहले क्वेश्चन से. CLAT 2020 में क्या होता था या फिर कई बार हुआ था कि इस पे ही थोड़े से फैक्ट्स ट्वीक कर देते थे. ठीक है, लिखा रहता था कि इफ़ इन द प्रीवियस क्वेश्चन सम दिस फैक्ट इज डिफरेंट. ठीक है, ट्वीक तो नहीं लिखेंगे ऑब्वियसली. लेट्स से ए डिड नॉट फ्ली एंड कॉन्टैक्टेड बी, तो उसके बाद क्या डिसीजन होता? विद एन एक्सेप्शन ऑफ 1 or 2, all the questions were independent from preceding questions. And for one passage, 4 out of 5 questions were specific detail based. I think that res judicata wala passage. Okay, so we are at the end of the video. Do not forget to get your access to this sheet that I have used in the previous videos as well. किधर गया ये? ठीक है, ये इस तरह से शीट नहीं है, ये प्रॉपर एक्सेल शीट है. ये इस तरह से आपको नहीं दिखेगा. Actually, you do not have to get access to that sheet. You only have to get access to this sheet, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना, and then you would automatically get access to this sheet. Okay, you will receive an email regarding that. Also, the mentorship program is live now. You can book the session from the description box. In fact, this is not a one-off session. ठीक है, this is a full-fledged mentorship program that would last till CLAT 2022 happens. ठीक है, जब भी CLAT 2022 होगा, नॉर्मली मई के सेकेंड संडे पे होता है CLAT, बट वी विल हैव टू सी थर्ड वेव का सिनेरियो क्या होता है. तो तब तक ये प्रोग्राम वैलिड होगा. सो विल हैव एटलीस्ट 3 सेशंस. ठीक है, माइंड द वर्ड एटलीस्ट, बिकॉज 3 is the minimum number, and we can also have more than 3 sessions. So अब ऑब्वियसली 10 से ज़्यादा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट 10, 8, 10 जितने भी सेशंस चाहिए उतने हो सकते हैं. एंड अनलिमिटेड मेंटरशिप सपोर्ट ओवर कॉल एंड व्हाट्सएप. ठीक है, सो दीज आर द पर्क्स. कुछ और भी डिटेल्स हैं, आप जाके प्रोडक्ट लिंक पे चेकआउट कर सकते हो. एंड यस, आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव यू ऑन बोर्ड. Mind you, the seats are very limited, so book your session soon. Subscribe to the channel if you haven't already, and I will see you in the next one. Till then, goodbye and take care.